Hello everyone, once again I Kalpesh Vyas from Spartan Gates welcome you all into this session। और आज का हमारा जो ये इंटरव्यू है उसमें हमारे जो गेस्ट है, she is basically from Rajasthan and she moved out to the Hyderabad after her marriage, and she has a 3-year-old wonderful girl named as a Kashvi, and she has started making a content related to lifestyle and the parenting। एंड उसने काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे पेरेंटिंग के ऊपर उसने काम किया है और काफी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट बनाया है। स्पेशली सी हर टारगेट ऑडियंस इज न्यू कपल as well as the couple who is having babies, okay, the new parents, and she has done wonderful work in the postpartum depression, and बहुत सारी अच्छी चीजें वो लोगों को सिखाती है। एंड yes, she's a content creator on the YouTube as well as on the Instagram, right? So please help me welcome Miss Shivani Agarwal, and let's understand what she is having in her bucket to share with us। Okay, तो parenting के बारे में हम आज कौन सी चीजें सीखेंगे शिवानी से, let's see। Okay, so we do have Miss Shivani Agarwal with us, and yes, Shivani, welcome to the show, and thank you very much for your precious time। Thank you so much. It's all my pleasure to be a part of this interview. मतलब मैं समझ सकता हूँ कि जब यू आर इन अ फैमिली एंड स्पेशली व्हेन यू हैव अ किड 3 year old, ओके, तो उस टाइम पे स्पेशली टाइम निकालना और हमारे साथ आपकी जर्नी शेयर करना, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना, इट इज रियली प्रिविलेज फॉर अस। ओके, anyways, so Shivani, would you please introduce yourself? Who is Shivani Agarwal, and anything what you would like to share with our viewers, our listeners, as well as your community? Yeah. So my name is Shivani Agarwal, and I belong from Rajasthan, but I stay in Hyderabad after I got married. And I'm a mother of a 3-year-old, so I am quite new to the parenting, I would say, yet, because 3-year experience is very less for me, I think, because parenting is like vast thing. But yeah, and I make content on YouTube and on Instagram related to parenting, lifestyle, and so much more. So you can check my Instagram handles and YouTube handles also to get some good content. या शिवानी, मैंने आपका जो कंटेंट है उसको मैंने रिव्यू किया एंड इट इज क्वाइट गुड एक्चुअली। एंड बहुत सारे जो न्यू कपल्स हैं, बहुत सारे जो मॉडर्न एरा के जो पेरेंट्स हैं, उसके लिए मतलब काफी लर्निंग जो होते हैं वो आप उसके साथ शेयर करती है, जिससे कि उसकी जो डिफिकल्टीज है वो कम हो जाती है। दैट्स व्हाट आई हैव आइडेंटिफाइड फ्रॉम योर कंटेंट। Okay. Yes, actually, I'm trying to make that only that people can relate to it in a fun way. तो थोड़ा ज्यादा ऐसे heavy भी ना हो, fun way में people can relate. Exactly. So मैं ये जानना चाहूंगा कि how what exactly inspire you to make the content about the lifestyle and the parenting, मतलब how you come to come in this particular area, come in this particular niche। Yeah. Okay, so to be honest, after watching like lots of YouTube videos, I got inspired that I should make something like this. So initially, it was my thought, okay, I should also make something like that. I think I can do it. It's my interest and all of that. But especially after becoming a parent, when I knew that that my life has changed a lot, and I have a lot to share. And to be honest, I have a lot to share about my personal journey, from which people can actually get help and get knowledge about it, because मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने से ज्यादा आप किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस जानते हो ना, तो आपको ज्यादा पता चलता है। सो उसके बाद आई डिसाइडेड टू शेयर माय पेरेंटिंग जर्नी, माय लाइफस्टाइल, हाउ आई डू what I've been through in parenting and my postpartum and everything. So I've shared everything online, and I'm so glad that it helped so many people also. So yeah, that's how I started. वंडरफुल एंड दैट इज एग्जैक्टली वेरी नोबल कोज। मतलब आप जिस जर्नी से जा रहे हैं, तो जो उसमें आने वाले हैं, मतलब जो नेक्स्ट जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए वो काफी इजी हो जाता है जब आप ये शेयर करते हैं, स्पेशली इन दिस एरा, जबकि इंफॉर्मेशन इज ओवरलोड एवरीवेयर। मतलब आपको जो कुछ भी चाहिए सारे इंफॉर्मेशन है, और वही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है कि एग्जैक्टली करना क्या है। True. That's so true. Exactly. So मैं ये जानना चाहूंगा, you have mentioned that you have been into the postpartum depression, right? Is it? Yes. Yeah. Yes. So क्या आप ये थोड़ा सा इजी करके बताएंगे हमारे लिस्टर्स को, व्यूअर्स को, कि व्हाट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड उससे कैसे आप बाहर निकले और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा?
ओके, सबसे पहले तो मैं इस चीज पे ये बोलना चाहूंगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन ना अभी भी इस टाइम पे भी है ना बहुत बड़ा टैबू है सोसाइटी में, कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड द सैडेस्ट रियलिटी इज बहुत सारी वुमेन्स को पता ही नहीं होता है कि दे आर गोइंग थ्रू अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। दे जस्ट थिंक कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो इट इज नॉर्मल टू हैव समथिंग और टू फील समथिंग लाइक दैट, इट इज नॉर्मल। बट इस चीज को एक्सेप्ट करना कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन में है एंड वी नीड हेल्प, ये बहुत बड़ी एक सैड रियलिटी कि लोगों को पता ही नहीं चलता है। बट आई वाज सो फॉर्चुनेट टू हैव पीपल अराउंड मी जिन्होंने मुझे उस टाइम पे हेल्प किया, ये रियलाइज करने में दैट यस आई एम इन द पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड आई नीड हेल्प. So the moment I got to know, actually my pregnancy was quite difficult because I had fibroid of like 13 centimeter in the starting of my pregnancy, and by the end of it, it was 22 centimeter, which is a very unusual case, extremely unusual. So बस गॉड फॉरबिड था कि सब कुछ अच्छे से हो गया इनमें, बट इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रेगनेंसी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई सफर अ लॉट इवन आफ्टर प्रेगनेंसी एंड दैट मे बी कॉज्ड अ postpartum depression for me. So my daughter was premature. She was in NICU for almost a month. And I did not meet her. I could not go and meet her. I could not breastfeed her for a month. So for a mother, it is really very challenging. And all of this had add to my postpartum depression thing. So उस टाइम में ना बहुत ऐसी फीलिंग होती है कि मतलब एकदम से क्या हो गया, पूरी लाइफ चेंज हो गई है, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ऑब्वियसली आपके हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं और उस टाइम पे पेन भी होता है बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। और मतलब उस टाइम पे वही होता है कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है या क्यों हो रहा है, क्यों मुझे नॉर्मल फील नहीं हो रहा। उस समय शायद ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप अपने आप से, अपने शायद बेबी से भी थोड़ा सा ना डिटैच होने लगते हो कि आई डोंट वांट दिस। But it is normal to feel that in the initial phase of the postpartum because it is bound to happen क्योंकि लाइफ पहले बहुत डिफरेंट थी एंड सडनली कुछ और बन गई है जहाँ पे एक छोटी सी जान पूरी आप पे डिपेंड है। सो ऑब्वियसली वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है जिसकी वजह से धीरे धीरे बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाती हैं एंड इट इज वेरी कॉमन। आफ्टर आई शेयर माई प्रेगनेंसी माई पोस्टपार्टम डिप्रेशन जर्नी, मुझे कितने सारे लोगों ने मैसेज करके बोला है कि येस दे वर इन द पोस्टपार्टम डिप्रेशन बट दे कुड नॉट टॉक अबाउट इट. So they talked about it to me. Even today also, if somebody is going through postpartum depression after watching my video, they message me and say that, yes, I'm going through a postpartum depression. Can you help? So the best help that you can get is just accepting it and talk about it with someone, either your partner or your parent, anybody you feel comfortable. Absolutely. So it's very important to talk and get help. यस यस, वंडरफुल। और ये जो एक टाइम होता है एक लेडी के, नॉट जस्ट लेडी बट इन अ पेरेंट्स लाइफ, ओके, हस्बैंड वाइफ दोनों के टाइम पे ये जब होता है तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल बिकॉज हमने कभी ये फेस नहीं किया है एंड एवरीथिंग फर्स्ट टाइम व्हाटएवर यू आर फेसिंग इट इज क्वाइट चैलेंजिंग, राइट? सो उस चैलेंजेस को, एंड ये चैलेंजेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकल चैलेंजेस है, इट इज फिजिकल चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस, इंटेलेक्चुअली आपका खुद का दिमाग भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको करता है, ये क्यों कर बैठे हम? ओके, एंड आई टोटली रिलेट विद द थिंग्स एंड या यू हैव सेड इट करेक्टली। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि दे हैव बीन थ्रू गोइंग थ्रू दिस, ओके। एंड जब वो देखते हैं कि भाई कोई किसी और को भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ है तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि भाई वो कुछ जाने जिससे कि वो कम कर पाए अपने पेन को, राइट? एंड यू आर डूइंग इट ग्रेट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, right? Thank you so much. I just wish to help some people, even if I listen to anybody now that they have just delivered the baby, the first thought that comes in my mind, how can I help so that she doesn't go in postpartum depression or she can have somebody to talk to. So it's like very close to my heart. Okay, wonderful. Okay, great. Yes, शिवानी जी, so can you share some tips कि अगर postpartum जो डिप्रेशन आता है, ओके, उसको हम क्या पहले से अवॉइड कर सकते हैं? फर्स्ट मतलब पहले से ही अवॉइड कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि उसको हम कंप्लीटली अवॉइड करें? फर्स्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। आई डोंट थिंक सो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कुछ भी ऐसा है जिसके बारे में आप बहुत सारी नॉलेज लेके उसको कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, बट यस देयर आर सर्टेन थिंग्स यू कैन कीप इन माइंड, स्पेशली एज अ कपल, एज अ पार्टनर। सो इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी मेंटल सपोर्ट की, कि आपके लिए कोई सपोर्ट है तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हो। सो एज अ हस्बैंड और एज अ पार्टनर ये नॉलेज लेना कि व्हाट अ वुमन गोज थ्रू इन पोस्टपार्टम and just be there and helping her.
So it is very important for a father to read all those things, to understand all those things, so he can help better. So that's what I did. He doesn't know about things because obviously we don't know about things prior until we do not face it. But at least after listening to this, if any father is listening to this, please read about it, learn about it, how you can help, how you can be there, and how you can just support her for everything. And that's when equal parenting also comes in the picture. So it is very important nowadays that both parents work equally for the child, so that एक बंदे पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर ना, स्पेशली मदर पे, क्योंकि शी इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अलॉट. ऊपर से अगर आप मेडिटेशन करते हो, आई थिंक अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, अगर आप उस चीज के बारे में पहले से पढ़ के थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को कि what are the things you can face, how do you feel, and how you can actually accept it and change it, how you can work on yourself. So उससे थोड़ा सा बेटर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे पहले से नहीं पता था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन समथिंग एग्जिस्ट, मुझे बाद में पता चला. बट आई विश अगर मुझे पहले पता होता तो बहुत जल्दी उसे शायद क्योर कर लेती. सो हाँ, रीडिंग अबाउट इट हेल्प्स अ लॉट. Exactly. And yeah, as you just mentioned, like equal parenting is really really important, and I do feel the same. I have experience कि जब मेरी wife जब first time pregnant थी, and when we had a baby, my first son Urjit, who is 5 years old now, okay. Oh, And nice. yeah, so at that time ना she was very disturbed mentally. मतलब जैसे आपने बताया ना कि एक नई जिम्मेदारी आई है, and at that time the real role of the husband came into the picture. Yes. That and मैं अब तक पेरेंटिंग में जितनी भी चीजें सीखा हूँ उससे एक कंक्लूजन मेरा आता है कि हस्बैंड इज समथिंग लाइक एक सिपाही की तरह वो खड़ा होना चाहिए, मेंटली फिजिकली एवरीवेयर, मतलब वाइफ के साथ जब ये चीजों से वो गुजर रही है तब, राइट. एंड दैट्स वेयर द इक्वल पेरेंटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट. Yes, husband plays a very important part actually, क्योंकि एक वाइफ अपने हस्बैंड से जितना शेयर कर सकती हो, जिस तरह से शेयर कर सकती है ओपनली, वो किसी से नहीं कर सकती है. एंड ऑब्वियसली वो सपोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा होता है. बट एट द सेम टाइम आई वुड आल्सो लाइक टू से कि जैसे मदर की एक नई जर्नी होती है ना, ऐसे फादर की भी एक नई जर्नी होती है. उसको भी पहले से बहुत ज्यादा पता नहीं होता. सो वो भी थोड़ा सा हमें लिबर्टी देनी चाहिए कि अगर हम नई माँ बने ना, तो वो भी एक नए बाप बने. बट यस, ऑब्वियसली बोथ पेरेंट्स वर्क इक्वली ना, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है चीजें. यस, मतलब दोनों को ये लगता है, मतलब साथ साथ में कुछ निकल जाएंगे इस जर्नी से, एक दूसरे का सपोर्ट रहता है. होता है. Yes, wonderful. And yeah, with this I would like to say, like as you just said, आप 3-year-old you have a kid, okay. So आप कुछ बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस मॉडर्न एरा में, स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग इन हैदराबाद व्हिच इज अ मेट्रो सिटी, ओके. द मॉडर्न आपकी जो लाइफ है आजकल की हमारी लाइफ, ओके, उसमें पेरेंटिंग कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए मॉडर्न पेरेंटिंग को लेके. ओके, सो आजकल ना बहुत ज्यादा चल रहा है कि जेंटल पेरेंटिंग, कि यू शुड बी वेरी जेंटल विद योर किड्स. एंड आई टोटली एग्री विद इट कि जेंटल पेरेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आजकल आप बहुत ज्यादा सुनते भी होंगे कि चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत ज्यादा है जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं. वो सब ज्यादातर उसी वजह से होते हैं क्योंकि हमारे टाइम पे शायद उतनी ज्यादा जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था. सो ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हैविंग सेड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. सो बहुत ज्यादा है ना, सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि जेंटल पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए. बट ऑल आई बिलीव इज कि जेंटल पेरेंटिंग में अगर हम सिर्फ उतना ध्यान रखें ना कि जस्ट अंडरस्टैंड योर किड्स नीड, कि व्हाट दे वांट, जस्ट लिसन टू देम एंड अंडरस्टैंड, देन दिस अंडरस्टैंडिंग देम इज इनफ. तो उसके अलावा ना बहुत सारी चीजें आजकल चल रही है मॉडर्न एज पेरेंटिंग में, कि उसको ऐसे मत बोलो, उसको अप्रिशिएट मत करो, एंड सो ऑन. मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना पेरेंटिंग को आजकल, कि इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है. पेरेंटिंग डिफिकल्ट है, बट उसको हम इजी थोड़ा सा बना सकते हैं किसी और पेरेंट के लिए, कि ठीक है आप जेंटली बिहेव करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसकी शूज में अपने आप को देखो, बी जेंटल एंड डू योर थिंग. बट बहुत बारी ना अपने माइंड से भी डिसीजन लेने पड़ते हैं कि सामने वाले ने बोल दो उसके वो वर्क करे, बट जरूरी नहीं ना वो हमारे लिए वर्क करेगा. सो कभी कभी अपनी पेरेंटिंग के ऊपर भी, अपनी कॉन्शियस से भी डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको क्या सही लगता है. तो हाँ, अभी पेरेंटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो गया इस वाली एज में, पहले से काफी ज्यादा, बट ठीक है, चल रहा है. एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई बहुत सारे लोग ना जो शेयर कर रहे हैं वो ये समझ के शेयर कर रहे हैं कि इट इज फिट फॉर एवरीवन, ओके. बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअली. एंड जो डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो लोग भी ऐसा समझ बैठते हैं कि भाई वो लोग जो बता रहे हैं वो 100% सही है.
ओके, हाँ हाँ एंड दैट इज नॉट द केस एक्चुअली। हर एक सिचुएशन अलग होती है। अगर आप न्यूट्रल फैमिली में हैं तो उसका पूरा वो अलग रहता है। अगर आप मतलब जॉइंट फैमिली में है तो उसका एनवायरनमेंट पूरा अलग रहता है। सो एवरीबडी यस नीड्स सबको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए, विच इज वेरी रेयर। यस दैट्स व्हाट आई सेड एक्चुअली यस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यस, ओके। विद दिस मैं कुछ जानना चाहूंगा कि भाई, डू यू रिमेम्बर एनी गुड मोमेंट्स विद कश्वी, ओके, योर डॉटर, एंड हाउ इज योर जर्नी? अब तक कैसी रही है आपकी जर्नी? आपने कुछ प्लान किया है कश्वी के लिए, या फिर आपकी कुछ अच्छी मोमेंट्स आप शेयर करना चाहें एज अ पेरेंट? या एज अ मतलब मैं अपना सबसे बेस्ट मोमेंट बताऊं तो वो था कि जैसे मैंने बताया शी वाज इन एनआईसीयू फॉर अ मंथ सो आई कुड नॉट मीट हर एंड द मेन प्रॉब्लम इज कि मुझे वो फाइब्रॉइड ना वाला पोस्टमार्टम बेबी था मेरी डिलीवरी के बाद भी सो आई वाज इन सो मच पेन कि मुझे वॉक भी नहीं किया जाता था सो मैंने उसको ऑलमोस्ट 14 डेज तक टच भी नहीं किया था अपनी खुद की बेटी को So after 14 days, when I went to the NCU and I touched her for the first time, I took her in my arms. That was the best moment in my entire life, I would say. उससे अच्छा कुछ भी हो सकता बिकॉज मैंने 14 डेज तक बहुत ज्यादा मैं तड़पी हूँ एक तरह से उसे अपने हाथ में लेने के लिए सो ऑब्वियसली दैट वाज द बेस्ट मोमेंट जब मैंने उसको ऐसे हक किया था और शी वाज सो टाइनी एक्चुअली क्योंकि बहुत प्रीमेच्योर थी ना तो शी वाज दिस मच ओनली एंड उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं पेरेंटिंग में जैसे वो जब मुझसे बात करने लगी है अभी मुझे बोलती है मम्मा व्हाट आई नीड व्हाट आई डोंट वांट वो अपनी चीजें बताने लगी है सो जब वो मम्मा बोलती है मुझे या फिर वो कुछ भी ऐसी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना पेरेंटिंग में जहाँ पे आप सोचते हो कि बस दिस इज ऑल आई वांट इसी दिन का मैं वेट कर रही थी वो वाला एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जब लगता है कि यार क्यों किया मतलब क्यों ही कर लिया क्या हो रहा है जिंदगी बट ओवरऑल बहुत बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील होता है कि आई टुक दैट डिसीजन एंड शी इज माय डॉटर नाउ इट्स आई थिंक बेस्ट फीलिंग इज मदरहुड और पेरेंटहुड आई वुड से एंड मैं ऐसा कुछ मतलब जब भी आप शेयर कर रही थी, इट इमीडिएटली क्लिक इन माय माइंड दैट इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। जब भी आप एडवेंचर पार्क में जाते हो एंड यू आर ना लिटिल बिट, यू आर स्कैर्ड लिटिल बिट, आप डरे हुए हो, क्या होगा, किस तरह से होगा, कहीं वो तू बेल्ट छूट तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे डर लगते हैं। बट एट द सेम टाइम वी आर एंजॉइंग दैट थिंग ओनली, राइट? हम बहुत yes अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं, और जब वो खत्म होती है, राइट, देन वी गोना मिस इट, ओके। सो मुझे भी यही लगता है कि पेरेंटिंग को हम रोलर कोस्टर राइड के साथ बहुत अच्छी तरह से मतलब रिलेट कर पाते हैं, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही बहुत अच्छा मेंशन किया एक्चुअली दिस इज द परफेक्ट वर्ड फॉर पेरेंटिंग yeah, and that's what we are actually here for. हम हमारा मिशन ही है स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी का कि हम पेरेंटिंग जर्नी जो है उसको फन बनाएं, और इसी के लिए हम आप जैसे जो लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं पेरेंटिंग के, ओके, उसको हम हमारे कस्टमर्स तक, हमारे लिसनर्स तक, हमारे जो व्यूअर्स है उस तक हम पहुंचाते हैं, ओके। एंड यू आर डूइंग रियली फैबुलस जॉब, आई वुड से, राइट? थैंक यू सो मच मीन्स अ लॉट With this, I would like to ask you few parenting hacks जो आपको लगता है कि भाई आपको शेयर करने चाहिए, and it would really help other people. Yeah, can you please share some hacks? ओके सबसे पहले तो ना मैं जितने भी पेरेंट्स इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि फिक्स अ शेड्यूल फॉर योर चाइल्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मिस दिस पार्ट क्योंकि ना हम बहुत ऐसे भावना में रह जाते हैं बहुत बारी बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई हैव टू रीजंस फॉर दिस फर्स्ट कि ना यूजुअल जिंदगी में भी ना अपना एक शेड्यूल होना एक रिदम होना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर एक चाइल्ड का एक पूरा शेड्यूल फिक्स होता है ना तो वो मेंटली बहुत बैलेंस होता है और वो आपको और आपके चाइल्ड को दोनों का हेल्प करता है एंड द सेकेंड एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नेवर एवर फॉरगेट कि आप एक पेरेंट के साथ आप एक कपल भी हो सो आपको अपने बच्चे को जितना टाइम देना है ना आपको साथ में उतना टाइम देना बिकॉज योर रिलेशनशिप ऑल्सो मैटर्स ना तो अगर आप एक बच्चे का स्केड्यूल बनाओगे सो यू विल बी एबल टू गेट सम पर्सनल टाइम फॉर योरसेल्फ एज वेल व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो बहुत सारे पेरेंट्स न्यू पेरेंट्स का होता है दिस इज वेरी नॉर्मल कि आपका सारा का सारा फोकस बच्चे पे चला जाता है एंड यू जस्ट टेंड टू फॉरगेट कि ओके यू आर अ कपल एंड यू नीड टू गेट सम टाइम फॉर ईच अदर सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स अ स्केड्यूल फॉर योर चाइल्ड इट विल बेनिफिट बोथ ऑफ यू सेकेंड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी से अभी बहुत ज्यादा मॉडर्न एरा ऐसा है कि बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई है टीवी देखना फोन्स वगैरह बहुत इजीली प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है इन सबसे दूर रहना इस टाइम पे और पेरेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है बच्चों को इनसे दूर रखना
बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए, पार्क लेके चले गए, या बहुत सारी सेंसरी एक्टिविटीज हैं। आपको तो इतनी सारी वीडियो, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इन सबसे, कि उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए, टॉय रोटेशन किया जाए रह रह के। तो मतलब ये बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं एक पेरेंट को और एक बच्चे दोनों को। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कि screen time is okay, but limiting that screen time is very, very important. Yes, exactly. You said it perfectly, and it really gonna help our viewers and listeners on all the parents, and especially जो new couples हैं, जो new parents हैं, आप relationship पे भी काफी content आप बनाती है, right? So if you would like to share anything related to relationship, मतलब आपकी relationship कैसे होनी चाहिए और क्या आपको ध्यान रखना चाहिए अपने husband के साथ, soulmate के साथ especially, so if you can share something about this. रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली दो लोगों की जर्नी है, तो दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट होनी चाहिए। किसी एक का भी अगर ज्यादा एफर्ट होता है ना, तो वो धीरे 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 फेड अवे हो जाता है, क्योंकि एक बंदा कब तक कर लेगा एफर्ट। सो दोनों तरफ से एफर्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक रिलेशनशिप हमारा जो है टचवुड इसलिए अच्छा है, क्योंकि हम दोनों की साइड से वो एफर्ट रहता है, और हम दोनों थोड़े से क्रेजी हैं इस चीज में। हम दोनों अपने लिए टाइम निकालना और कैसे भी मैनेज करना, अभी भी इवन आफ्टर 5 years वी ट्राई टू स्पीक आउट अ डेट नाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट। So it is very important to keep that spark alive. सबसे मेन जो मैं मानती हूँ ना एक रिलेशनशिप का, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन इज द की। Until you are not communicating your feelings, your wants, your desires, what is that you don't like, what is that you like, and everything ना, आधी से ज्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाते हैं। So communication is really, really important, and setting some boundaries for your relationship is very, very important. तो मुझे लगता है कि जब तक ये सब चीजें थोड़ी है ना, कि जब तक आप छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना के उससे एंजॉय करो रिलेशनशिप में, तब तक बहुत सॉर्टेड रहता है रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। एंड जो आपने लास्ट चीज बताई वो मुझे काफी मतलब हिट कर गई कि कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हम लोग मतलब हम जब रिलेशन में होते हैं या तो फिर हम हमारी सोलमेट के साथ हमें कुछ भी हमें लगता है, तो हम इंटरनल कम्युनिकेशन ज्यादा करते हैं, मतलब अपने आप से दिमाग में, यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको पता होना चाहिए, इतने साल हो गए मेरे साथ, राइट? ओके। जबकि अगर वही बात हम सामने वाले को बता दें, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अगर हम रखें, तो उसका कुछ सॉल्यूशन आ सकता है। अदरवाइज वी विल बी मेकिंग लिमिटिंग बिलीव्स हमारे सोलमेट के लिए या तो फिर हमारी फैमिली मेंबर्स के लिए, एंड दैट विल एग्जैक्टली क्रिएट होल लॉट ऑफ मतलब सर्कस, बहुत केओस जनरेट करेगा वो। हाँ, वो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। टू बी ऑनेस्ट आई एम लाइक दैट ओनली, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे बहुत जल्दी नहीं बोला जाता है बहुत सारी चीजें, बट आई एम वर्किंग ऑन इट एवरी सिंगल डे। सो एक टाइम पे जब 5 years पहले मैं ऐसी थी कि मेरे को कुछ बुरा लगा तो अपने अंदर ही रखती थी, बट आई रियलाइज्ड इट ओवर टाइम कि हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक इट आउट, क्योंकि जब तक वो सॉल्व नहीं होगा ना, अगर उसमें मिट्टी डाल देंगे ना, तो आगे कंटिन्यू होता रहेगा, नेक्स्ट लड़ाई में भी काम आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट इट आउट देन एंड देयर एंड फिनिश इट ऑफ एंड स्टार्ट अगेन रिफ्रेश। So it is very important. Exactly. Okay, so this was all about this session, and thank you very much Shivani for coming in this session. And yeah, हमारे listeners को and viewers को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको relationship के बारे में, lifestyle के बारे में, as well as आपको postpartum depression के बारे में कुछ चीजें जाननी है, या फिर आपको उसके related कोई भी help चाहिए, तो शिवानी अग्रवाल का जो content है वो आपको काफी help कर सकता है, as well as you can also reach out to her. So Shivani, will you please share your Instagram handles, social media links, everything, so that our listener can reach out to you? Can you please just spell it out? We'll be definitely mentioning it into the description. Yes. So my YouTube handle is Shivani Agarwal only, SHIVANI AGGARWAL, and my Instagram handle is Shivani SHIVANI._Agarwal AGGARWAL. And anyone can contact me anytime, especially about parenting and postpartum and couples related problems. Any problems that you're facing, I'm free to talk to anyone, anytime. Trust me. And yeah, we can definitely says that that you love to talk. I can really say that. Okay Shivani, thank you very much for coming in this session, and thank you. Just be in touch with us. हमें और कोई भी मतलब पेरेंटिंग के रिलेटेड आपसे मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम फिर से आपको इस सेशन में बुलाएंगे और फिर से एक इंटरव्यू करेंगे। Okay, it would be my pleasure. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Yes guys, thank you very much for spending time with us, and this was the interview with Shivani Agarwal. हमने काफी सारी अच्छी चीजें
इस इंटरव्यू में सीखी, जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है, किस तरह से उसमें से बाहर आ सकते हैं, इक्वल पेरेंटिंग का फंडामेंटल क्या है, वो हमें शिवानी से सीखने को मिला, एज वेल एज टेक्नोलॉजी और दूसरी बहुत सारी चीजें जो पेरेंटिंग को अफेक्ट करती है वो किस तरह से काम करती है, राइट, उसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें इस इंटरव्यू में जानी। आई एम श्योर कि ये सारी चीजें आपकी पेरेंटिंग जर्नी को इजी एंड फन बनाएंगी, एंड दैट्स व्हाट आवर मिशन इज एज अ स्पार्टन किड्स। हम ये चाहते हैं कि आपकी पेरेंटिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ रहे, right? So for that, please like, share and subscribe and just be tuned with us. आपको बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें हम लेके देने वाले हैं। Okay, thank you very much.